सो वेलकम टू द क्लास। हम लोग डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के रिलेशन देख रहे थे, बट धीरे धीरे हम ऐसी जगह पे आए जहां डीएनए, एमआरएनए और प्रोटीन छोड़ के भी मतलब उनको कैसे पढ़ा जाए उसको सोचा जा रहा था। एंड देयर कम्स लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनोम, ट्रांसक्रिप्टोम एंड प्रोटियोम मेटाबोलम। तो हम बोल रहे थे कि कहाँ से पढ़े हम। And when we are talking about this, the information obtained from DNA sequencing, so हमने सोचा कि कार्बोहाइड्रेट से पढ़े, लिपिड से पढ़े, प्रोटीन से पढ़े और तीनों में डिफरेंस पता चला, विच प्रॉब्लम्स पता चला, बट डीएनए या आरएनए सीक्वेंसिंग में हमें प्रॉब्लम नहीं देखा। सो we decided to go for information obtained from DNA sequencing that would help us getting information in different levels to understand life. But जब आप सोच लिए ऐसा, what to be sequenced in the molecular level? So if you look at, we have already talked about in DNA, there are double-stranded structures which have nitrogenous bases, purines and pyrimidines, which form hydrogen bonds, adenosine form 2 hydrogen bond with thymine, and guanosine form 3 hydrogen bond with cytosine. There are sugars, there are phosphate and the bases. Now, बाकी चीज तो same है, but if we consider the nitrogenous base with the sugar, we know that in DNA synthesis, the 3' and 5', both sugars are taking very important role, and if somehow you could be able to take that hydroxyl group, the 3' hydroxyl group, you get something like this. And this is called deoxynucleotide, and this is called dideoxynucleotide. So कैसे सीक्वेंस किया जाएगा? जब ये आ जाएगा, इसके बाद इफ यू लुक एट, आप देखोगे कि यहाँ फर्दर सीक्वेंसिंग नहीं होगा, so the DNA chain would be terminated and the synthesis would be stopped. And on the other side, if you imagine a process which is called polymeric chain reaction or PCR reaction, a PCR reaction or PCR is a process by which a tiny amount of DNA would be amplified into huge amount. Like if you want to do research with your DNA, you just take a tiny amount of hair and then extract the DNA, and using the technique of polymeric chain reaction, you could increase it to a huge amount. So PCR, you amplify the large quantities of DNA, analyze single DNA fragment out of large complex mixture, and alter the DNA sequence if you want. Like now, when you amplify, you could have work on this amplified DNA. So that's the process. If you look at what are the components of PCR reaction, you see that you need a template DNA, you need flanking primers,
you need the polymerase, the DNA polymerase, which is doing the reaction. Like polymerase, this is one of the remarkable invention which makes the PCR reaction successful. Then DNTPs, remember I talk about the deoxynucleotide triphosphate, like deoxyadenosine triphosphate, deoxythymidine triphosphate, deoxycytidine triphosphate, and deoxyguanosine triphosphate. And then PCR buffer and thermocycler is the machine. So if you look at the PCR variable, it is temperature, cycle times and temperature, primer, buffer, and the enzyme polymerase. And if you look at the PCR reaction, you will see that starting from one pair of DNA, just a pair of DNA, you could get 68 billion copies within 36 cycles. That's the amazing power of polymeric chain reaction, or PCR, where your DNA, your character containing thing, would be enhanced into a very, very amplified form. Now we will come to Sanger sequencing. 1 minute. So now I am coming to Sanger sequencing. If you look at this man, he invented the idea of polymeric chain reaction. This is the instrument, this tiny instrument could make change in biology. This is called thermocycler, and the whole setup called PCR amplification. This, along with the concept of DD and TP, which I just talked about, Sanger comes up with something called Sanger sequencing, and Sanger sequencing create a real revolution in the biology research. How? So, if you have DNA, you go there. If you have small DNA, you take the entire DNA. If you have fragments, you take the fragments. You have big DNA, you make fragments, and you take all the tukras, and you go for PCR reaction, as we have talked about. Only change in the strategy is, instead of DNTPs, D ATP, DGTP, DCTP, DTTP, you take also dideoxy. If you look at here, DD means dideoxy thymidine triphosphate, dideoxycytidine triphosphate, dideoxy adenosine triphosphate, and dideoxyguanosine. So you make a mixture of deoxy and dideoxy. In addition, the dideoxy mixtures are added with some unique fluorescent probes. So for thymine, dideoxythymine triphosphate, there is one fluorescence probe. For cytidine, there is one fluorescence probe. For guanosine, there is one fluorescence probe. And for adenosine, there is another fluorescence probe. So in one side, you have DNTPs, which is the usual requirement for the PCR. In other side, you have the fluorescent probe. So there will be competition. Who will go the position which could be acquired by DATP, that would be now facing competition from DDATP. And if DNTP, like DATP, wins,
then usual polymerization happens. But if DDATP wins, then that stop. So in that way, sometime it goes stop, sometime it elongate. You get a lot of mixture of different size of DNAs, as you could see here. Very interestingly, at the end, because the end is only possible if the dideoxy is coming, so at the end you will always get a fluorescence probe. Now the fragments could be separated by using gel, like agarose gel, and you see that how by the gel the smallest fragment would go faster, the bigger one would be behind, and you could read it using, by tracking the fluorescence probe. So that was the initial Sanger sequencing, but it was then get the blessings of technology when instead of agarose gel, capillary is used for gel electrophoresis. So instead of agarose gel electrophoresis, it was technically shifted to something which is called capillary gel electrophoresis. Again, when it is a capillary, the resolution is much higher than running it in a agarose plate, but it was further becoming advanced and the reading become automated when it was fired with a laser. So the laser now keep firing, and when it match with a particular fluorescence probe, there is a resonance which is recorded in the chart in the form of a chromatogram. So the electrophoresis happens, fragments are coming. Whenever the probe comes, the laser fired, it matches, and the correct signal heated here. In that way, automatically a chromatogram would be produced, and looking at the chromatogram, it is not very difficult to read A, T, G, C, C, G, A, T, C, T, A, G. In that way, the sequences. Interestingly, this is the first time we are able to read a actual biological macromolecule. So some characteristics I should want to talk about. Around 800 plus nucleotide base length could be read in this process. It's very, very accurate. That was wonderful. And the Sanger sequencing is still now the one which came in 1985 or something, still considered very accurate and as a gold standard. तो ये तो समझ में आया, बट ये नहीं समझ में आया कि why Sanger sequencing was revolutionary. Do you have any idea, anyone, why this Sanger sequencing was revolutionary? Anyone? Anyone? Hello. No, sir, no idea. So you don't understand that it is important? Yes, sir, I understand it's important, but like how it's revolutionary, that's the One by one. Pradeep, bolo. sir. Uh, it's revolutionary because it's like it gives complete genome sequence. How this complete the genome sequence? What is the size of a genome?
सबको पूछ रहा हूं मैं, उदित बोलो। एंड एज आई टोल्ड बाय द लॉ, हर लोग अपना नाम बताओ और आंसर दो। उदित बोलो, आप कुछ बोल रहे हो? कैनॉट हियर यू उदित। अस्मिता, Yes, sir. ये सर नहीं, आप अस्मिता बोलो और आंसर। Asmita here, sir. हम्म, Sir, sequencing was revolutionary because it helped sequence DNA in a faster and cheaper way in comparison to in comparison to. हेलो सर। जब फास्टर एंड चीपर होएगा तो कोई तो होएगा जो उससे खराब था। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, उदित। हाँ उदित बोलो। सर, it was very cost effective and 99 point accuracy rate. That's why it is very better than other techniques. कॉस्ट इफेक्टिव किससे? जो पुराना सा PCR कंपेयर कर लें। हाँ क्या था, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, प्रोसेस क्या था इससे पहले? सीक्वेंसिंग का प्रोसेस क्या था इससे? सपोज तुम पिज्जा ऑर्डर किए, तुम्हें तभी लगेगा ना ये सस्ता है जब इसी टाइप के कोई चीज तुम पहले ऑर्डर किए थे जो महंगा है, राइट? यस सर, यस सर। तो वो क्या है? सर थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन ये जो इसकी पिछला टेक्निक्स था उससे बेटर था और कॉस्ट इफेक्टिव, और 100 इसका एक्यूरेसी रेट ज्यादा था, इस वजह से अच्छा, ये बेटर है। तो मुझे पता नहीं क्यों, मुझे बहुत दुख लग रहा है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, कोई सुन तो नहीं रहा है। तो सेंगर के पहले कोई प्रोसेस नहीं था, ठीक है? आप अभी सुन लो, सभी लोग क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सेंगर इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू टेक्निकली ऐसे कोई प्रोसेस डेवलप करने का जो कि सीक्वेंसिंग ऐसे पढ़ा जाए। ओके, जी सर, जी सर। ये जो पिछले वाला प्रोसेस आप क्या बोल रहे हो मुझे पता नहीं है, वो सेंगर का ही ये है, क्योंकि जब भी डीएनटीपी का कॉन्सेप्ट आया उसी से आगे बढ़ा। हाँ, वो धीरे धीरे वही प्रोसेस का इंप्रूवमेंट हुआ है, बट इसके पहले ऐसा कोई इस्टेब्लिश मेथड था नहीं। सेंगार के साथ साथ एक प्रोसेस आया था जिसको मैक्सम गिलबर्ट प्रोसेस बोला जाता है, जो मैंने नहीं बोला बिकॉज इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट वाज नेवर बिकम ए प्रोसेस टू कैरी फॉरवर्ड। सो मैक्सिमम जो आपने रिप्लाई किया उसका बेस नहीं है। सेंगर सीक्वेंसिंग यूनिक है, पहला आया है। तो रिवोल्यूशनरी तो एक तो आप सीधी बातों में बोल सकते हो कि पहला मैक्रोमोलिकुलर पढ़ने का जो ये आया है तो वो रिवोल्यूशनरी है। बट इट्स मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज इफ यू गो बैक टू द codon table, you will see that the DNA and RNA are connected with the amino acids with the relation of codons. ओके, हमारे यहां 4 न्यूक्लियोटाइड हैं। सो 4 न्यूक्लियोटाइड से हम जब 3 कोडॉन डेवलप कर सकते हैं तो टोटल कितना कोडॉन होएगा? 4 न्यूक्लियोटाइड है ATGC,
जब आप ATGC से 3-3 करके लोगे तो कितना होगा? प्रदीप, Yes, sir. हमारे पास 4 है ATGC, 4 से जब आप 3-3 करके कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कितना होगा? एनीवन? Sir, Akanksha here. क्या आकांक्षा, बोलो। Sir, Sir, 64. 64 होगा। सर 64 सर। सो सर मैंने 64 हुआ। हाँ ठीक है, सुना मैंने। 64 हुआ। अभी ये जैसे याद है, मैं जब डीएनए बोल रहा था, मैंने बोला डीएनए एंडलेस है। डीएनए को खोल के निकालो तो आप अपने बॉडी से शाम तक पहुंच के जाना आना कर सकते हो कहीं बार, बट प्रोटीन छोटा है, मैंने बोला था। तो प्रोटीन को कहीं स्टॉप होना है, जब स्टॉप होते हैं तो स्टॉप सिग्नल देते हैं। आपको यहां दिखाई देगा TAG एंड TGA, TAA, TAG एंड TGA, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। तो 64 में 3 चला गया तो कितना रहा? 61, राइट? Yes, sir. यस सर, यस सर। अभी मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या होता? 61 कोडॉन है और ये 61 कोडॉन 20 में बांटना है। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते? 3-3 कोडॉन सबको बांट दे, राइट? बट that never happens in biology, and that's why biology is very interesting, very layered, very mischievous. यहां किसी को एक कोडॉन मिलता है, जैसे मिथायोनिन को एक ही कोडॉन मिलता है ATG, राइट? और आर्जिनिन को 6 कोडॉन मिलता है, CGT, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG, 6 कोडॉन मिलता है। बाकी लोग इसके बीच में रहता है। किसी को 2 मिलता है तो किसी को 4 मिलता है, आइसोल्यूसिन को 3 मिलता है। तो ऐसे ऐसे रहता है। जैसे मैंने बोला, स्टॉप को 3 मिलता है, ट्रिप्टोफैन को 1 मिलता है, ऐसे डिफरेंट है। जनरली एवरेज बोले तो 4 या 6 मिलता है। तो ये आपको यहां देखने को मिलेगा किसको क्या मिला है। तो किसको क्या मिला है, यहां से दो मेजर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें ले जाने को मिलता है। एक, इफ यू सी, बायोलॉजी कोई डिवीजन, कोई रूल नहीं मानता, जो मैंने बोला पहले। और दूसरा है, दिस कनेक्ट्स द डीएनए एंड एमआरएनए विथ प्रोटीन। सो जो भी डीएनए से आपको जीन सीक्वेंस मिला, उसका प्रोटीन सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। एंड वहीं पे जब आपको जीन सीक्वेंस से प्रोटीन सीक्वेंस मिलता है, वहीं पे एक उम्मीद जागता है, इफ वी कुड गेट ए जीनोम, इफ वी कुड रीड ए जीनोम, वी कुड हैव रीड द all the genes, hence all the protein sequence. ये दूसरी वाला पॉइंट आपको समझ में आया, जो लास्ट में बोला, जीनोम और जीन और प्रोटीन का जो रिलेशन है।
जी सर। क्या आया बोलो उदित। सर अगर हम ना ग्रुप ऑफ जीन्स को स्टडी कर पा रहे हैं और इंडिविजुअल जीन्स को, तो प्रॉब्लम तो क्या है? उसके हिसाब से समझ जो लिया, प्रोटीन। समझ लिया, तुम समझ गए हो। जी तो प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं कर रहे हम? जीन तो हम करने की जगह पे आ गए थ्रू सेंगर सीक्वेंसिंग। व्हाई नॉट वी आर गोइंग टू गो फॉर द जीनोम? सर उसमें तो कई जीन जो होता है वो प्रोटीन सिक्रेट करता है, कई लोग नहीं करते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज, उसके साथ क्या इसलिए हम वही सेगमेंट लेंगे जो जी और एक बार बोलो, ये तुम थोड़ी गलत जगह पे पैर दिए हो, फंसे हो। सर क्या बोल रहे हो? कुछ जीन जो होते हैं प्रोटीन बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते, जैसे एक्सोसोम्स और इंट्रॉन्स एंड ऐसा एक्सॉन्स का जीन है, कॉन्सेप्ट है। ऐसा जीन है जो प्रोटीन नहीं बनाते, राइट? सर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स का कॉन्सेप्ट आता है। जी जी अच्छा, जीन छोड़ के एक्सॉन और इंट्रॉन का कॉन्सेप्ट आता है। तुम बायोटेक्नोलॉजी पास करके आए हो? हाँ, जी सर। जी सर। बायोटेक्नोलॉजी पास करने के बाद ही तुम्हें एमटेक आने के मौका मिला। तुमने लास्ट टाइम बोले थे ना तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है। जी सर। पास सर्टिफिकेट किसने दिया तुम्हें? ये सब चेक करना चाहिए ना। हम जब साइकिल चलाते हैं ना, चक्का जी से सर। जब हवा निकाल जाते हैं, हम चेक करते हैं ना। तुम्हारा लेग तुम्हें चेक नहीं करके छोड़ा है। कौन ये सिखाया कि जीन है लेकिन प्रोटीन नहीं करते? जीन और नॉन जीन और जीन, ये दोनों को सीधे से समझो। जो जीन है वो जीन ही है ना, वो तो प्रोटीन करेगा ही। जो नॉन जीन है वो नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जी तो गलत क्यों बोल रहे हो फिर? अभी समझ में आया? जीन जो है वो तो जीन पार्टी है ना। हाँ सर। तो यहां प्रॉब्लम क्या है? सीक्वेंस क्यों नहीं कर रहे? अगेन आई एम बैक टू द क्वेश्चन। चलो उदित को हम थोड़ा तंग कर दिए। और कोई है जिसको आंसर पता है कि हम जब हम सिंगर सीक्वेंसिंग के हेल्प से डीएनए या एमआरएनए को पढ़ पा रहे हैं और वहां से प्रोटीन सीक्वेंस को कन्वर्ट करके मिल रहा है हमें, तो हम जीनोम क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलो, कोई कोई भी बताओ। बोलो बोलो, कोई बोलो। सर हाँ, ये सर जैसे डीएनए का हर एक सेगमेंट कोड नहीं करता है, जैसे डीएनए कुछ, जैसे डीएनए में हर जीन जो है कोड नहीं करता प्रोटीन को, कुछ एक्टिव होते हैं कुछ अभी नॉन तो एक्टिव, जैसे तुम्हें हाइड्रोजन। समझाया, ये तो उल्टा जाते हो तुम भाई। अभी तो बोला कि ऐसा कोई दुनिया में जीन नहीं है जो प्रोटीन नहीं देते। सभी जीन प्रोटीन देते हैं, तो जीन सर और डीएनए नॉन में जब जीन। अभी तो तुमने मेरा बात समझे हो, फिर इस सेम बात में चला गया। क्लास इज गोइंग ऑन, ओके सर, सॉरी सर। क्लास चल रहा है, क्लास। नहीं, तुम्हें नहीं बोला, मेरे घर में कोई आया वो क्लास में, रूम में, उसको बोला। तुम बताओ, तुम्हें तो अभी सर समझाया सॉरी सर। यहाँ, जी सर। समझ नहीं पाया क्या? कोई भी समझ जीन गए सर। होगा उससे प्रोटीन बनेगा। फिर मेरा क्वेश्चन है तुम्हें, मैं एक जीनोम दे दिया जिसमें सारे जीन हैं, क्या हम सेंगार से उसको पढ़ पाएंगे? मेरा आंसर है नहीं पढ़ पाएंगे।
तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारे लिए है या सबके लिए है, क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्लियर हुआ उदित? जी सर क्लियर हो गया। हाँ, तो और कोई बताओ। अद्वैता, क्या लगता है आपको? अद्वैता, हेलो। यस सर। हाँ, क्या लगता है हेलो आपको? यस सर। तो सारे जीन्स प्रोटीन देते हैं। नहीं, वो तो मैं क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो उदित का गलत फहमी था। मेरा क्वेश्चन है कि सारे जो जीन है उसको एक साथ करके एक जीनोम बनाया, उस जीनोम को हमें सीक्वेंस करना चाहिए था, कर सकता था, मतलब हम कर, हम हमें करना चाहिए था उसको, राइट? लेकिन सेंगर सीक्वेंसिंग में हमें वो करने का एबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? सर नहीं आइडिया। रिया? यस सर। नो सर, आंसर दो। सर could you please repeat the question? अरे सबको तो तुम क्या कर रहे हो क्लास में? फिर 5 बार क्वेश्चन को रिपीट किया, फिर तो तुम ये बैठ के गाना सुन रहे हो। मेरा पढ़ाई सुनो ना। ये भी मालिक, तुम्हारा नाम क्या है? हेलो? यस सर। तुम्हें नहीं, तुम्हारा नाम भी मालिक है? सॉरी सर। ये भी मालिक, पता नहीं लोग क्लास में बैठ के क्या कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो प्रोसेस है हमारा, ये क्लास असेसमेंट है। जो 25 मार्क आपके 100 मार्क में जाएगा, वो ये क्लास असेसमेंट के रिकॉर्ड से होएगा। तो जो क्लास में क्वेश्चन करने से भाग जाते हो, जो क्लास में क्वेश्चन करने के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते हो, ऑल ऑफ देम आर रिकॉर्डेड एंड अकॉर्डिंग टू दैट मार्क्स वुड बी गिवन। ओके बी मालिक? सो मैं भी मालिक को रिकॉर्ड कर रहा हूं। भी मालिक क्लास में बैठे हैं और गाना सुन रहा है, इसीलिए भी मालिक कोई आंसर नहीं दे रहा है। सो भी मालिक, मेरा ये रिकॉर्ड जब सुनोगे तुम मुझे तुरंत आंसर करना, क्योंकि आज तुम्हारा पत्ता काट रहा है यहां। सो जैसे मैंने बोला था कि जब हम जीन अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डीएनए, उससे एमआरएनए, प्रोटीन, बट ओवरऑल जो कंटेंट है, डीएनए का जो कंटेंट है उसको जीनोम बोलते हैं, जो एमआरएनए कंटेंट है उसको ट्रांसक्रिप्टोम बोलते हैं, प्रोटीन कंटेंट है प्रोटियोम बोलते हैं। तो जीनोम और ट्रांसक्रिप्टोम, डीएनए और एमआरएनए, इसको हम करने का इच्छा रखते हैं, और ये करे तो प्रोटियोम आएगा, और वो होगा तो मेटाबोलोम, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, वो भी हम डिटेक्ट कर पाएंगे। बट इसके लिए हमें सेंगर नहीं इनफ है। क्यों? आपको याद होएगा मैंने ये बोला, सेंगर से एक राउंड में 800 से 1000 बेस पेयर आप सीक्वेंस कर पाओगे। बट नाउ इफ यू लुक एट द जीनोम साइज, एक छोटा सा वायरस जो कि T2 फाज है, उसका 170,000 बेस पेयर है। एसेरिचिया कोली, ई कोली, जो सबसे यूज्ड बैक्टीरिया है, उसका जीनोम में 4.6 मिलियन बेस पेयर है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो कि फ्रूट फ्लाई है, आप फ्रूट वेंडर के पास फल खरीदने जाओ तो
जो छोटा सा मक्खी आपको डिस्टर्ब करते हैं, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं उसको। उसके पास 130 मिलियन बेस पेयर है। ह्यूमन, जो कि आप लोग हो, 3.2 बिलियन बेस पेयर। किनोपी प्लांट एक छोटा सा प्लांट है जो 150 बिलियन बेस पेयर है। तो जीनोम साइज इतना बड़ा होने के कारण आपके जो सेंगर प्रोसेस है, लेट्स से एक वायरस है, तो उसको जब आप सेंगर से करोगे 170 राउंड आपको करना पड़ेगा सिर्फ वायरस के जीनोम करने के लिए। बेसिकली उससे भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जीनोम को आप फ्रैगमेंट कर रहे हो। फ्रैगमेंट हर एक जगह पे नहीं होगा, ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट होएगा। तो लेट्स से 250 टुकड़ा होएगा और उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो एक तो बहुत पैसे जाएगा, बहुत टाइम जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जो कि सैंगर सीक्वेंसिंग है, उससे हम लोग शिफ्ट करेंगे, जिनको हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? द जनरेशन ऑफ मेनी मिलियंस ऑफ शॉर्ट रीड्स इन पैरेलल में, जैसे वायरस को करना है तो 250 टुकड़ा को एक साथ पैरेलली करे, तो जहां एक राउंड में सैंगर सीक्वेंसिंग हो रहा था, उसी टाइम में आपको बन जाएगा वायरस का। सो क्या हुआ? जनरेशन ऑफ मेनी मिलियंस ऑफ शॉर्ट रीड्स इन पैरेलल। द स्पीड अप ऑफ सीक्वेंसिंग प्रोसेस कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। बड़ा लंबा प्रोसेस है। सो पहले पैरेलल कर लो, फिर स्पीड अप करो, एंड देन लो कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग। सोचो कि 1000 बेस पेयर को आपको सीक्वेंस करने के लिए 1000 रुपया लगे सेंगर में। उसी प्रोसेस को आप ऐसे करो तो 250,000 रुपया लगेगा, और मैं लिटरली पकड़ू तो भी 170,000 रुपया लगेगा। इतना पॉसिबल नहीं है। तो सीक्वेंसिंग के कॉस्ट कम करनी है। और सबसे बड़ा, द सीक्वेंसिंग आउटपुट इज डायरेक्टली डिटेक्टेड विदाउट द नीड फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इतने बड़े प्रोसेस है, सो ऑटोमेटेड वे में इसको डिटेक्शन करना है, जिसका एक टेक्निक, एक सोफिस्टिकेशन मैंने बोला कि कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और उसके बाद उसको लेजर से डिटेक्ट करते हैं। ऐसे काफी ज्यादा ऑटोमेशन हुआ, काफी ज्यादा प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का साथ लिया गया। एनजीएस क्या है? नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। सो सैंगर सीक्वेंसिंग से जो इंप्रूवमेंट हुआ है उसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बोला जा रहा है। कैसे होता है एक बार दिखा जाए। पहले क्या होगा? जीनोमिक डीएनए आरएनए। तो जो एक्चुअली जीनोम या ट्रांसक्रिप्टोम को आप सीक्वेंसिंग करना चाहते उसको चुनना, सिलेक्ट करना। सो सिलेक्शन ऑफ द जीनोमिक डीएनए आरएनए व्हिच इज हैव टू बी सीक्वेंस। देन आपके पास इतने बड़े हैं तो उसको तोड़ ताड़ के उसके टुकड़ा बनाना। सो कंस्ट्रक्ट लाइब्रेरी, a library of fragment nucleotides which would be needed to be constructed। सारे को टुकड़ा 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 करके एक जगह पे ले आना। प्रिपेयर टेम्पलेट, हमें पता है कि यही टुकड़े को सीक्वेंस करने के बाद हमें फिर एक पूरा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सबको इंडिविजुअली चुना जाए, इसीलिए सबके साथ साथ टैग लगा के एक कलेक्शन तैयार करना, जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ टेम्पलेट्स। हो गया अभी मैसिव पैरेलल सीक्वेंसिंग। ऑटोमेटेड सीक्वेंसर जिसका हम बात कर रहे हैं वुड परफॉर्म पैरेलल सीक्वेंसिंग। एनालिसिस ऑफ डेटा, देन सबसे मुश्किल एंड सबसे महत्वपूर्ण काम है वो पूरे डेटा को एनालिसिस करना। एनालिसिस कुड बी
यूजिंग इन हाउस, लाइक आपने लिखे हुए सॉफ्टवेयर या खरीदा हुआ सॉफ्टवेयर से हो सकता है. सो एनजीएस के वर्कफ्लो है सिलेक्शन ऑफ द जीनोमिक डीएनए और आरएनए, construction of the library, the collection, preparation of the template, massively parallel sequencing, and last but not the least, collection of the data, analysis of the data. इससे हम करेंगे. प्लेटफॉर्म क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो इंप्रूवमेंट हुआ वो है क्या. सो पहले 1986 से जो हुआ वो सेंगर नहीं किया था, उसको अप्लाइड बायोसिस्टम बोल के एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके साथ मिलके एबीआई सेंगर, अप्लाइड बायोसिस्टम सेंगर के नाम पे इंस्ट्रूमेंट ये किया गया है. एंड 2005 में रोसे, द कंपनी यू नो, रोसे का इंस्ट्रूमेंट आया है. दे आर कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और द सेंगर सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म. आज भी यो यूज होता है. आज भी आप जाके सेंगर सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म खरीदना चाहते हो तो ये खरीदते हैं. Then second generation आया Illumina. Illumina makes a very big market. Even today they have the most rights in the market. तो Illumina देख मतलब समझ सकते हो, बहुत सारे कलेक्शंस है Illumina का. And then come at 2006 Illumina came in the market, and 2008 there is Life Solid, and Illumina and Life Solid are called second generation. So that's where the next generation comes, and I hope you understand what I'm talking about. You are standing on 2022. आज से सिर्फ 16 साल पहले, सिर्फ 16 साल. अभी जो भी आप पढ़ोगे आपके टीचर दिखाएगा, आप देखना बहुत पहले ये सब का आगाज हुआ है. बट आज हम जो टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहे हैं वो बहुत ही रिसेंट है और वो दुनिया को हिला दिया है. और आगाज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का इंट्रोडक्शन सिर्फ 2006 पे हुआ है. 2010 में आया लाइफ आयन टॉरेंट, एंड 2011 पे आया पैक बायो. So Life Ion Torrent and PacBio are third generation platforms, and PacBio is in between third and fourth. Fourth is the most modern. और जो है जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं, 2014 में आया ऑक्सफोर्ड नैनोपोर. नैनो टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के स्पेशल इंटरेस्ट के लिए मैं बोल रहा हूं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक बहुत ही अनोखा इंस्ट्रूमेंट है. इसके बारे में मैं फिर कहूंगा, इसके एप्लीकेशन के बारे में. यहां क्या किया जाता है, एक प्रोटीन है जिसके अंदर से डीएनए निकालते हैं. सो फोर्स क्रिएटेड, जिस फोर्स में वो डीएनए और प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर से डीएनए निकालते हैं. एंड जो बाकी है इसके डिटेल्स में आप जाओ, जैसे आपने देखा, तोड़ना है, टेम्पलेट करना है, सीक्वेंसिंग करना है, यहां कुछ नहीं करना है. सिर्फ आपको फोर्सफुली पास करानी है. और दिस एंगस्ट्रॉम लेवल थिंग्स आर आइडेंटिफाइड. सो पास होने के टाइम बोलते हैं अच्छा ए गया, अच्छा जी गया, अच्छा टी गया. सो यहां कुछ नहीं करना पड़ता है. और ऑलरेडी आई होप यू सी द डायमेंशन, बहुत ही बड़ा है ये, राइट. ये जो ऑक्सफोर्ड नैनोपोर के सिस्टम है, आपको देख के समझ में आ रहा है कितना बड़ा है ये. एनीवन? अस्मिता? Like very small, sir, hand, the size of a वेरी hand. स्मॉल. जैसे आप कपड़े वगैरह ऑर्डर देते हो ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जैसे पहुंच जाते हैं आपके घर में एक पैकेट, ये भी ऑर्डर देने से ऐसे आपके घर में पहुंच जाएगा. इंस्टॉलेशन कुछ नहीं चाहिए इसका. मजेदार चीज है, ठीक है. और दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट वेयर प्रोटीन इज वर्किंग एज ए नैनो मशीन. आप लोगों को पता होगा, मैं बोलूंगा,
प्रोटीन एज ए नैनो मशीन, ये इनोवेशन जो है, ये मॉलिक्यूलर मटर जो काइनेसिन, डायनेमिन, हमारे बॉडी के जो सामान है एक जगह से दूसरे जगह पे जो ले जाते हैं, उसको कॉपी करके साइंटिस्ट लोगों ने बनाया, और इसके लिए नोबेल प्राइज भी ऑलरेडी मिला है। तो दिस इज वन एग्जांपल जहां प्रोटीन इज यूज्ड एज ए नैनो मशीन, जो मशीन यूज्ड है टू रीड द डीएनए सीक्वेंस। इसके पहले हम जब दूसरे में गया, कितना कुछ करना पड़ रहा है हमें, जीनोमिक डीएनए चुनना है, लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन करना है, टेम्पलेट प्रिपेयर करना है, मैसिवली पैरेलल सीक्वेंसिंग करना है, और एनालिसिस ऑफ डेटा। कुछ नहीं करनी है, सिर्फ इससे पास करनी है और ये पढ़ पाते हैं। तो आप में कोई होगा जो बिलीवर नहीं हो, कोई लोग होता है ना जो शक करते हैं, जो बहुत अच्छा है, तो वो लोग शक से बोलेगा, सर ये जो आप बोल रहे हो सही है, बाकी में क्या कुछ करना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, तो हम क्यों नहीं यूज करते हैं। और इफ एनीवन हैव दैट डाउट और दैट क्वेश्चन इन योर माइंड, आपने सही चुने हैं और आपके दिमाग काम कर रहा है, ये सही है, ये बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी है। 2014 में आविष्कार के बाद इसको लेके बहुत काम चल रहा है, बट आज तक क्या है ना, एरर रेट इसका ज्यादा है। ये पढ़ने के टाइम जो एरर होता है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो रिसर्च इज गोइंग ऑन टू मिनिमाइज द एरर रेट, एंड 2020-21 में जो मार्केट में आया है उसका एरर रेट काफी कम होते जा रहा है। एज आई टोल्ड, आई विल टॉक or I will give a separate lecture on this Oxford Nanopore system, because this is one of the things which could be the application part of our course. So I will talk about that. जो इल्यूमिना है, लाइफ आंथोरेंट है, फैक्ट बायो है, नैनोपोर है, ये सब आजकल के यूज के लिए नेक्स्ट जनरेशन एनजीएस, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स है। तो क्या इफेक्ट है इसका, मैं कार्टून का हेल्प लिया हूं आपको समझाने के लिए कि क्या इफेक्ट है। द अपर पैनल इज माय फर्स्ट 4 years ऑफ वर्क, बट द लोअर पैनल टुक ओनली 1 year। ऐसा बोला जाता था जब डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए कोई पीएचडी स्टूडेंट करता था, 5 साल में इतना कम इंफॉर्मेशन उनको आता था, ऐसे ही हमने देखे हैं। बट भी जीनोम ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया है, स्पेशली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं बोलने वाला हूं, तो एक एंजल ऐसे इंपैक्ट आया। एक एंजल जब आके बोला, गॉड द ह्यूमन जीनोम कोड हैज बीन अनरेबल्ड, भगवान भी परेशान है, डैम हैकर्स, नाउ आई हैव टू चेंज द पासवर्ड। तो भगवान को लगा कि जिंदगी का पासवर्ड जो है वो साइंटिस्ट लोग क्रैक कर लिए। और ये जो एक बहुत ही बड़ा इनोवेशन है, इसके शुरुआत हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आगाज के साथ 1990 में, जहां एमआईटी, स्टैनफोर्ड, कैलटेक, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी एक प्लेटफॉर्म में आए थे, और बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज को उन्होंने एक जगह पे ले आए थे, बहुत पैसे दिए थे और शुरुआत किए थे एक ह्यूमन जीनोम को कंप्लीट सीक्वेंस करने का काम। 1990 से 2003 13-14 साल लगा था पूरा करने के लिए, और जब ये हुआ it was considered as a small step towards immortality for human। हमें मरने का इच्छा किसी को नहीं होता है, तो हम अमर बने, उसी प्रोसेस पे एक छोटा सा स्टेप माना जाता है, इतना इंपैक्टफुल है। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे दुनिया के लीडिंग जो न्यूज़पेपर है, उनमें
फर्स्ट फ्रंट पेज में सबसे बड़ा खबर हुआ था, जेनेटिक कोड ऑफ ह्यूमन लाइफ इज क्रैक्ड बाय साइंटिस्ट्स। नेचर साइंस जैसे बड़े बड़े दिग्गज जर्नलों में बार बार इसके बारे में आर्टिकल छपा हुआ, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने खुद आके जो पूरे डेटा जो है ह्यूमन जीनोम का 12 सीडी रोम आपको यहां दिख रहा है, ये जॉर्ज बुश है, ये साइंटिस्ट से उन्होंने 12 सीडी रोम से ये पूरे डेटा कलेक्ट किया। इतना ही इंपॉर्टेंट था, अमेरिका उसको नेशनल ऑयल वेल्थ के रूप में, नेशनल रिसोर्स के रूप में, वर्ल्ड रिसोर्स के रूप में कंसीडर्ड किया। फिर क्या हुआ, जब उसके पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब हुआ नहीं था, रिसर्च तब भी चलते थे, लोग एक एक जीन में रिसर्च करते थे, उसके प्रोटीन प्रोडक्ट में रिसर्च करते थे। डिपार्टमेंट हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जहां एक एक प्रोटीन को लेके लोग रात दिन रिसर्च किया करते थे। अचानक से आया, इफ यू सी दैट, इट वाज लाइक फिशिंग। आप बैठ के एक मछली पकड़ रहे हो घंटों बैठ के, दिन किसी ने आया, क्रेन लिया, पूरा मतलब जो टैंक है उसको घेर लिया, सारे मछली उठा के ले गया। That was the Department of Genomics and Proteomics. They are not only they don't target one or two genes, they are targeting the entire genome. So that was the change of concept. एक साइंटिस्ट जिनको पूछा गया है, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस इन साइंस, कि आप इतने बड़े हो, आप साइंस के जो सक्सेस है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, तो वो बोला कि व्हेन आई कैन कॉइन माई ओन ओम वर्ड, जैसे जीनोम, प्रोटियोम, ट्रांसक्रिप्टोम, मेटाबोलोम, मेटाजीनोम, ओम वर्ड दुनिया के सारे कोने में वाइब्रेट होने लगा। लोग हर चीजों को एक जीन, एक प्रोटीन भूल के पूरे एक ऑर्गेनिज्म के पूरे जो डीएनए कंटेंट है, आरएनए कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट है, उसके बारे में सोचने लगा, और ओम वाज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इफ यू लुक एट द कॉस्ट, आपको ये ग्राफ सीधी सीधी बोलेगा कि कॉस्ट में कितना ज्यादा इफेक्ट आया, कितना ज्यादा रिडक्शन ऑफ कॉस्ट हुआ। आप इतने 100 मिलियन से घट के कहां आया। सो अच्छे चीजें हम बात कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज ग्रेट। नाउ we are coming to something where we are adding but. After genome sequencing project, now we have millions and billions of gene sequence. ये तो हमें पता चल गया कि जितने सारे जीनोम आप दे दोगे वो सीक्वेंस हो जाएगा। उसका मतलब we have उतना ही प्रोटीन सीक्वेंस हमें पता चला जाएगा। बट जब हमें जीन सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंस या आरएनए सीक्वेंस पता चल रहा है, अभी हमारा जर्नी होगा टूवर्ड्स फंक्शन। और फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चाहिए। ये सब प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चाहिए, और दैट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर। अभी भगवान भी खुश है। भगवान ने बोला, परहैप्स आई डोंट नीड टू चेंज द पासवर्ड, दे स्टिल हैव ए डायनामिक प्रोटियोम कोड टू ब्रेक, दे कैनॉट हिट द मूविंग टारगेट। सो 2 चीज है, एक है आपने सीक्वेंस, जीन सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस तो जान लिया, लेकिन जब तक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तब तक आप बहुत सारे काम, स्पेशली जो
अंडरस्टैंडिंग के काम वो नहीं कर सकते, एक नंबर। दूसरी नंबर है कि सपोज आप प्रोटीन के बात कर रहे हो, प्रोटीन एक्सप्रेस, कोई प्रोटीन ओवर एक्सप्रेस होता है, कोई प्रोटीन अंडर एक्सप्रेस होता है। ये क्या बोल रहा हूं मैं? जब आपको देखना, सपोज आप कोई इमोशनल चेंज हो रहा है, आपको गुस्सा हो रहा है या आपको कुछ खुशी हो रहा है, इफ यू कुड स्टार्ट इमेजिन कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, आपको समझ में आया कि बॉडी में आएगा कि कुछ फ्लो कर रहा है। सो कोई प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन, मतलब ज्यादा एक्सप्रेस हो जाता है, कोई प्रोटीन कम एक्सप्रेस होता है, दोज कंट्रोल योर इमोशन। कभी आपको गर्मी में कुछ रिएक्शन होता है, ठंड में कुछ रिएक्शन होता है, ऑल दोज आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए एज वेल एज प्रोटीन। तो इसको बोलते हैं मूविंग टारगेट। सो एक आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जाननी है, दूसरा आपको ये मूविंग टारगेट के बारे में जानना चाहिए। दैट आर द 2 challenges हियर। तो जब आप वो जानोगे, आपके लिए बहुत बड़ा खजाना खोल जाएगा। यू वुड नो व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू लाइक, what type of protein is there, what type of protein is affected by a disease and all. So it goes to the biological space, like what are the druggable space and existing drug target जो कि 450 टारगेट्स है, उससे काफी बढ़ जाएगा। जैसे यहां आपको देखने को मिलेगा, इन ह्यूमन इट गोज फ्रॉम 30,000 का druggable gene target 3,000. So we are talking about challenge of protein folding and its significance in the field of biomedical research. But we have to know, we have already talked about the template based synthesis of the DNA, but now we have to know about when the DNA converted to mRNA, and mRNA by a protein synthesizing machinery, a ribosome, is converted to protein as a polymer. वो प्रोटीन कैसे फोल्ड करेगा? So from a molecule, from a straight chain polymer to folding, that would be understood by the process of how the protein fold. This is a beautiful example where the protein में क्या है, 20 अमीनो एसिड्स है। जैसे मैंने बोला, आप सबको 20 अमीनो एसिड के जो स्ट्रक्चर्स है वो याद करनी है, वो लिख के प्रैक्टिस करनी है। दैट वुड कम टू योर एग्जाम, एंड उसी के नॉलेज आप सोचो तो किसी के साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, किसी में C डबल बॉन्ड OH है, किसी में NH2 है, किसी में सिर्फ NH2 है, किसी में CONH2 है। तो all those they have to interact hydrophilically, the other one interact hydrophobic way में। And if you now look at the black particle here, प्रोटीन का जो फोल्डिंग है, कोई भी प्रोसेस जो है वो ऑप्टिमाइजेशन होता है। ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। डिफरेंट मॉलिक्यूल आता है, डिफरेंट साइड चेन ऑफ प्रोटीन आता है, और वो कैसे इंटरेक्ट करेगा वो डिफाइन करते हैं, कैसे प्रोटीन अपनी जर्नी तैयार करेगा। तो यहां आप देख सकते हो एक प्रोटीन का जो पाथ है वो ऑप्टिमाइजेशन पाथ है। सो ऊपर से नीचे तक एक फनल जैसा है, बट इंटरेस्टिंगली आपको देखने को मिलेगा देयर आर मल्टीपल मिनिमस। सो देयर आर लोकल मिनिमस, देयर आर मेनी लोकल मिनिमस, मेनी लोकल मैक्सिमस, एंड देयर इज वन ग्लोबल मिनिमा। So the journey of protein folding is the effort to try to reach to the global minima.
सो उसी के चक्कर में, उसी ग्लोबल मिनिमा को अचीव करने के चक्कर में क्या वो मतलब ट्रायल एंड एरर करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटीन फोल्डिंग, अगेन जिसके बारे में बहुत कुछ हमें बोलना है। द चैलेंजेस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए फोल्डेड प्रोटीन स्ट्रक्चर, क्यों हमें प्रोटीन फोल्डिंग स्ट्रक्चर चाहिए, हाउ वी कुड डिटरमाइन, अच्छा ठीक है चाहिए तो चाहिए, करेंगे कैसे, हाउ वी कुड डिटरमाइन द प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर, एंड व्हाट आर द लेवल ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, क्या क्या है, इसको डिटेल्स में पढ़ना है, बट मैं एक सीधी तरीके से आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा फर्दर ले जाने के लिए। तो एक है, देयर आर 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर और 1 डिग्री स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आके एक वाटर एलिमिनेशन रिएक्शन में एक पॉलीमर डेवलप करेगा। वही जो अमाइनो एसिड के पॉलीमर है, जहां हर पॉइंट में पेप्टाइड बॉन्ड है, उसी पॉलीमर को और उसी जो एसिमिलेशन को हम 1 डिग्री और प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे आप यहां देखा, टी मतलब थ्रियोनिन, पी मतलब प्रोलिन, ई मतलब ग्लूटामिक एसिड, के मतलब लाइसिन, एस मतलब सेरीन, ए मतलब एलानिन, वी मतलब वैलिन, अगेन टी मतलब थ्रियोनिन, ए एलानिन, ए ल्यूसिन, डब्ल्यू ट्रिप्टोफैन, जी ग्लाइसिन, के लाइसिन एंड वी वैलिन, ऐसे अमाइनो एसिड्स का इन आपने यहां देखा। अभी जो अमाइनो एसिड्स हैं, आपको याद होगा, मैं फिर इसके बारे में पढ़ाऊंगा कि सी डबल बॉन्ड ONH पेप्टाइड बॉन्ड है, तो एक के सी डबल बॉन्ड NH के साथ दूसरे का NH जो है, ये जो H है वो डबल बॉन्ड O के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फाउंडेशन होता है। फॉर अल्फा हेलिक्स, nth जो अमाइनो एसिड है वो N+4 फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ ऐसे करेंगे, सो ये घूम घूम के ऐसे हेलिकली आएंगे, दैट्स व्हाट इट फॉर्म ए हेलिकल स्ट्रक्चर। इसको अल्फा हेलिक्स के नाम पे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जाना जाता है। देन सो ये हुआ इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर एक के साथ दूसरा, ये होता है बेटा स्ट्रैंड के साथ। ये एक बेटा स्ट्रैंड है, ये दूसरा बेटा स्ट्रैंड है, इनके CO के साथ इनके NH का होगा। ये पैरेलल हो सकता है, एंटी पैरेलल हो सकता है। तो these are beta strands and together they are form beta sheets. So अल्फा हेलिक्स हो गया और बेटा शीट हो गया। अब ये अल्फा हेलिक्स और बेटा शीट को जो जोड़ेगा उसको लूप या कॉयल नाम पे उसको बोला जाता है। लूप या कॉयल का कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। सो 3 कंपोनेंट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, एक है अल्फा हेलिक्स, दूसरा है बेटा शीट एंड तीसरा है लूप्स। नाउ सब जब पास पास आ जाएगा, देखो अल्फा हेलिक्स, उसके बाद लूप, उसके बाद अल्फा हेलिक्स, ये सिर्फ अल्फा हेलिक्स है। इधर जब आएगा ये, इसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स, बेटा शीट, लूप सब एक साथ आ गया, और एक पॉलीमरिक प्रोटीन चेन से इतना ही जाएगा, प्राइमरी जाएगा, सेकेंडरी जाएगा, टर्शियरी जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन एक से ज्यादा चेन उस पे है तो क्या होएगा, वहां और एक नया लाइक 2 चेन आ गया, वो जो इंटरेक्शन करेगा उसको ओलिगोमर्स बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल जो फॉर्म है, आर्किटेक्चर है, इसको क्वार्टरनरी बोलते हैं। तो 2 आएगा तो डाइमर,
3 आएगा तो ट्राइमर, 4 आएगा टेट्रामर, उसमें भी सेम आएगा तो होमोडाइमर, होमोट्राइमर, होमोटेट्रामर, डिफरेंट आएगा तो हेटेरोडाइमर, हेटेरोट्राइमर, हेटेरोटेट्रामर के नाम पे ये परिचित होंगे। जहां देखो ये डिफरेंट है, ये जो सेम है ये होमोडाइमर है, ये दो बेटा 1 बेटा 2 ये होमोडाइमर है, ये डाइमर के डाइमर है, ये टेट्रामर है लेकिन ये डाइमर के डाइमर बोला जाता है इसको। सो इन समरी आपको क्या मिलेगा कि प्रोटीन के 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, जहां की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी शामिल है। बट एक चीज नहीं बोलने से ये स्टोरी कंप्लीट नहीं होता, वो है सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे अल्फा हेलिक्स, बीटा स्ट्रैंड, ये मिलके एक जो पहला यूनिट टर्शियरी के तरफ जो पहला यूनिट है, और कभी कभी वो स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन के इंडिकेशन देते हैं, उसको सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर या मोटिव के नाम पे जाना जाता है। हम बाद में ये मोटिव के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। So if I come to make summary of first, what was the first genome to be sequenced? It was human genome. How long was it required to complete the first human genome sequencing? 1990 to 2003, which means 13 years. And how much did it cost to sequence the first human genome? Is $2.7 billion US. बट आजकल 7 दिन छोड़ो, उससे भी कम लगता है, और 500 to 5000 USD पर जीनोम, उसका मतलब एक जीन में $1 से भी कम लगता है। यहां अगेन आप में कोई चिंता कर रहे हो, सुन रहे हो, ज्यादातर तो आप मुझे नहीं लग रहा है सुन रहे हो, मेरा रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो, क्वेश्चन आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो इफ यू आर लिसनिंग, आपको थोड़ा खटका लगेगा कि सर ने बोला 500 to 5000 USD पर जीनोम, ऐसा कब होता है? मतलब कब हम दुकान में जाके बोला कि भाई मुझे ये दे दो, और दुकानदार ने बोला इसका प्राइस 20 होएगा या 200, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो सर ने क्यों बोला कि 500 हो सकता है, 5000? ये हो सकता है एक्चुअली बिकॉज देयर आर 2 टाइप ऑफ सीक्वेंसिंग। वन सीक्वेंसिंग क्या है, आप लोगों में कोई आज सोचो कि अरे $500 का मतलब तो 40,000 रुपया है, हाँ मैं तो दे सकता हूँ, एफोर्ड कर सकता हूँ, और मुझे बहुत शौक है कि मेरे जीनोम के बारे में जानने का, आई एम इंटरेस्टेड। तो आप कमर्शियली कर सकते हो। जब आप कमर्शियली करोगे, आपको बहुत डिटेल नहीं चाहिए, बहुत एक्यूरेट नहीं चाहिए, तो $500 में हो जाएगा। बट यही चीज जब आप रिसर्च पर्पस में कर रहे हो, तो हमें बहुत एक्यूरेट चाहिए होता है, तो हम 1x के जगह पे 100x मतलब 100 बार डेटा कलेक्शन करते, तो इसीलिए ज्यादा पैसे लगता है। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू, इट मेक्स थिंग्स क्लियर। लेकिन जहां की अभी $1 से कम में एक जीन आप सीक्वेंस कर लेते हो, वहां भी जब आप प्रोटीन के बारी आते हैं, आपको 3000 से 5000 US$ लग जाता है। 2 से 3 साल एक PhD स्टूडेंट को लगातार मेहनत करना पड़ता है, तब जाके एक स्ट्रक्चर का सॉल्यूशन होता है। तो ये आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन पे ले जाएगा, भाई ऐसा क्या तीर मार लेते हैं स्ट्रक्चर जो इतना टाइम लग जाता है और इसका ऑटोमेशन भी नहीं है। सो व्हाई सो मच मनी एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर? ये बोलने के पहले मैं इंट्रोड्यूस करूं 3 प्रोसेस: एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, NMR and cryo-electron microscopy. Definitely these are very big processes. It takes like entire course to talk about them. तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, NMR या क्रायोइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के एक्सपर्ट बनाने के लिए यहाँ नहीं आया हूं, बट मैं इन लोगों का थोड़ा सा भी डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहता हूं, सो दैट यू वुड गेट ए बेसिक आइडिया कि
क्यों ऐसा होता है? तो आपको पहले क्लोन करना पड़ता है, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बोला, मैं बोलूंगा बाद में अगेन। उसके बाद आप ओवर एक्सप्रेशन करके प्यूरिफाइड, दिस इज, यू कुड सी द सिंगल बैंड, दैट मींस यू हैव ए प्यूरिफाइड प्रोटीन। प्यूरिफाइड प्रोटीन लेके आप क्रिस्टल सेट करो। सेटिंग क्रिस्टल मींस डेवलपमेंट ऑफ ए थर्मोडायनामिकली आइसोलेटेड सिस्टम, जहां डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन रहेगा, ऑयल रहेगा, वहां से आप सोल्यूशन लोगे और प्रोटीन लोगे, ये मिक्स हो जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन है, इसके आधा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन यहाँ आ जाएगा। अभी जब आप ग्रीस या कुछ देके इसको बंद कर दोगे तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा, और आइसोलेटेड सिस्टम में इसके कंसंट्रेशन इससे आधा है, तो यहाँ से पानी इधर जाएगा एंड ये धीरे धीरे और कंसंट्रेट होता रहेगा। ये जब कंसंट्रेटेड होता रहेगा तब एक मोड पे आके देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ फेज ट्रांजिशन, और वो फेज ट्रांजिशन आपको, इफ यू आर लकी, आपको क्रिस्टल दे सकते हैं। हाउ मच इज द प्रोबेबिलिटी? इफ एनीबॉडी हैव आइडिया, एक आपने सब कुछ अच्छा करके एक प्रोटीन का क्रिस्टल सेटअप कर दिया, तो आपको कितना परसेंटेज है कि आपको क्रिस्टल मिलेगा? एनी आइडिया, एनीवन? उदित, एनी आइडिया? नो आइडिया उदित? ये भी जादव को मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ये बोल नहीं रहे। प्रदीप, प्रदीप, Yes, sir. या मेरा क्वेश्चन आपने सुना नहीं? सर सुना है। तो क्या क्वेश्चन है बताओ? जैसे भी जादव और उदित ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैंने रेड मार्क लगा रखा है, ऐसे रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा और उसी हिसाब से मैं मार्क्स दूंगा। सर हेलो सर, हेलो सर, देखो, हेलो सर उदित। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो। सर सर नेटवर्क इशू है यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा, प्रदीप बताओ जी इसलिए। क्या क्वेश्चन था प्रदीप? What? हाँ, देखो, आप लोग खेल को कितने अच्छे से ले जा रहे हो। बैठे रहते हो यहां, क्वेश्चन करने से बोलोगे नेटवर्क इशू है, तो टीचर्स का क्या रोल है फिर? पढ़ाते जाना और आप लोग ऐसे ही आके इधर बैठो उधर नहीं बैठो, सुनो नहीं सुनो, आपको सब कुछ माफ है। मुझे कोई जानने का ये भी अधिकार नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? मैं इतना अच्छे से आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने का कोशिश कर रहा हूं, आप लोग कोई रिस्पॉन्स ना करो तो कोई फायदा ही नहीं है, राइट? क्या मैं भी ऐसे ही बोलूंगा नहीं, चलो चलते रहो। तो इधर 8% प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ ठीक करने के बाद 8% प्रोबेबिलिटी है। हमें क्या चाहिए?
वी नीड द प्रोटीन इन वेरी प्योर स्टेट। आपको पहले प्रोटीन को क्लोन करके ओवर एक्सप्रेशन करके बहुत ही प्योर स्टेट में लाना है। यू नीड प्रोटीन टू क्रिस्टलाइज, आपको प्रोटीन को क्रिस्टलाइज करनी है, फिर क्रिस्टल बने ऐसा करना है। इफ क्रिस्टल बने तो अच्छा क्रिस्टल होना चाहिए, नीड गुड क्रिस्टल्स। क्रिस्टल अच्छा बने तो एक्सरे देके उसको डिफ्रैक्ट कराना है, यू नीड गुड डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन अच्छा हो तो आपको रेजोल्यूशन चाहिए, गुड रेजोल्यूशन। इतने सब कुछ करने के कारण आपको जितना काम पड़ता है उससे टाइम लगता है, मानी लगता है। The second method is न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। वहां एक तो आपको लेबल करना पड़ता है, 1H is naturally labeled but carbon 12 is the normal isotope, so carbon 13 को आपको लेबल करना पड़ता है, नाइट्रोजन 14 is the normal one, नाइट्रोजन 15 लाना पड़ता है, P32 is the normal one, P31 लेबल करना पड़ता है। So it have to be labeled in an external magnetic field having two spin state, one paired and one opposed to the external magnetic field. It detects and assigns the chemical shift of atomic nuclei with non-zero spins. And the shifts depend on their electronic environment, identities, and distances of nearby atoms. The system can be tuned to look at specific feature of the characteristic spin moments and 1H जो कितना पास आएगा दूर जाएगा, ये न्यूक्लियर ओवरहॉसर इफेक्ट से आपको पता चलता है। Better resolution is obtained when the molecule is tumbling fast. So छोटा मॉलिक्यूल हो, बहुत फास्ट टम्बलिंग करते हैं तो रेजोल्यूशन अच्छा होता है। प्रोटीन जितना बड़ा होते जा रहा है टम्बलिंग स्लो हो जाता है और आपको बड़ा से बड़ा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। Protein must be soluble at high concentration and stable without aggregation. High throughput can show these and folded versus unfolded का very quickly. देखो आपको क्या करना है, एक बहुत बड़ा मशीन चाहिए। दूसरा जो है आपको ये निश्चित करनी है कि आपका जो प्रोटीन है वो लेवल हो, लेवल होने के बाद भी उसको एक्सप्रेस होना है और उसके बाद भी आपको देखना है कि वो अनफोल्ड ना हो जाए, फोल्डेड रहे, एग्रीगेट ना हो जाए। तो दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एनएमआर। इन एडिशन एक एनएमआर का जो बड़ा है जिसमें प्रोटीन का आप काम कर सकते हो, उसके जो प्राइस है वो शुरुआत होता है डिफरेंट एनएमआर होता है, जैसे 400 नैनोमीटर मेगाहर्ट्ज के एनएमआर, 500 मेगाहर्ट्ज के एनएमआर, 600, 700, 800 ऐसे। तो प्रोटीन के लिए ठीक ठाक काम करने के लिए आइडियल प्रोटीन जो स्टैंडर्ड प्रोटीन है उसके लिए एटलीस्ट 700 नैनोमीटर के 700 मेगाहर्ट्ज के एनएमआर आपको चाहिए और उसके लिए मिनिमम आपको 10 से 15 करोड़ इन्वेस्ट करनी है। तो इंस्ट्रूमेंट महंगा है, उसको सेटअप करना महंगा है और यूज महंगा है, इसीलिए इतना पैसे लगता है और ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसीलिए इतना टाइम लगता है। तो I would go further. So if you see here, आपको NMR सैंपल, ये NMR मशीन है, इसमें लोड करना है, पल्स सीक्वेंस देना है, NMR स्पेक्ट्रा, 1D स्पेक्ट्रा, 2D स्पेक्ट्रा, 3D स्पेक्ट्रा डेवलप करनी है, कंप्यूटर में उसको कैलकुलेट करनी है और वहां से अल्टीमेटली 3D स्ट्रक्चर आपको मिलता है। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है ना, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो आप टेम के नाम से जानते हो। इट अलाउज फॉर द स्पेसिमेन ऑफ इंटरेस्ट टू बी व्यूड एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर। ये आपको बायोलॉजिकल सैंपल को क्रायोजेनिक मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करके उस टेम्परेचर में जाके देखने को देता है आपको। क्रायोइलेक्ट्रॉन हैव हेलो सर। या सर क्या जो हमें अभी जो लेटेस्ट 3D स्कैनर्स आए हैं उसमें उससे हमें डिटेक्ट नहीं कर सकते?
और एक बार बताओ। जो लेटेस्ट 3D स्कैनर्स है तो इससे हम 3D स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं कर सकते इससे। क्या 3D स्कैनर है वो बताओ। जैसे लाइका का है या फिर कॉग्निक्स का 3D है। स्कैनर क्या है? किसके 3D स्कैनर है? किस बेस पे चलता है? विजन बेस पे। हाँ, विजन मैं समझा नहीं, और एक बार बोलो। विजन टेक्निक पर। विजन? थोड़ा यस सर, शायद विजन अचानक से टेक्निक। आपको कुछ हो गया है। अब समझो, ये बायोलॉजी जब मटेरियल जब आपको स्कैन करनी है, पहले चीज आपको देखने का चैलेंज नहीं है, आपको पहला चैलेंज है इसको प्रेजेंट करने का। आप जब विजन बोला ना, हाँ सर। विजन किसका होता है? इतना तो बेसिक पढ़ोगे ना। यस यस, जो दिख सकता है विजन उसको जिसका, कहते हैं। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हो? आंखों से देख सकते हैं मतलब उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से भी अगर सपोज जिस इमेज को हमने देख रहे हैं उसका 3D स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए। आपने तो सब कुछ बोल दिया, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन कहाँ था और आंसर क्या है, मुझे थोड़ी ये हो गया। और एक बार बताओ। पहले तो आप स्कैनर बोल रहे थे, मैं आपको बार बार पूछने का कोशिश कर रहा था कि किस बेस का स्कैनर। सर यहाँ सर मैं आपके 3D सर स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं हो रहा है ना। यहाँ हम ऐसे बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी बोल चुका है कि एंगस्ट्रॉम लेवल पे दिखा जा रहा है। तो पहले तो जो Yes, भी sir. आप बोल रहे हो उसको एंगस्ट्रॉम लेवल पे उनके देखने का पावर होना चाहिए, एक नंबर फर्स्ट। सेकेंड, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल सैंपल को आपको प्रिपेयर करनी है। आपके बॉडी में मैं स्कैनर पकड़ू तो मुझे प्रोटीन नहीं दिखाई देगा भाई, है ना। Yes, sir. पहले तो हमें प्रोटीन प्रिपेयर करनी है, फर्स्ट थिंग। प्रोटीन के सॉल्यूशन यहां आप कोई भी लैब में आओ आपको दिखाया जाएगा, प्रोटीन के सॉल्यूशन से आप कुछ नहीं देख पाओगे। नाउ यू टॉक अबाउट माइक्रोस्कोप। आपको कौन बोला कि प्रोटीन को या जो भी एंगस्ट्रॉम लेवल पे दिखा जाते हैं उसको लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है उसको। लाइट माइक्रोस्कोप मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाया अभी, आप लोगों ने मतलब आपने ऐसे ही एक क्वेश्चन ला दिया, सोचा नहीं समझा नहीं। लाइट माइक्रोस्कोप 100 नैनोमीटर तक वहां जाते हैं, राइट। तो उनके 100 मिलीमीटर, तो उनके नीचे जो नैनोमीटर में है उसके लिए आपको लाइट सोर्स को इलेक्ट्रॉन सोर्स में बदलना पड़ेगा। आपको पता है क्यों इलेक्ट्रॉन सोर्स ज्यादा अच्छा काम करता है? हेलो। No, sir. तो देन प्लीज अंडरस्टैंड द साइंस। एक स्कैनर लेके हम कर लेंगे तो उसके साथ ये सब सुविधाएं रहेगा ना, फिर वो स्कैनर होगा, ये भी स्कैनर ही है। ये जो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हम बात बोल रहे हैं ये स्कैनर पे ही हम जा रहे हैं। लेकिन आपने शायद समझा नहीं द ब्यूटी व्हिच आई एम ट्राइंग टू प्रोजेक्ट और द ब्यूटी व्हिच इज हैपनिंग हियर इन द साइंस। यहाँ एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, दूसरा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तीसरे माइक्रोस्कोप है। तो यहां तीनों टाइप ऑफ फिजिक्स को यूटिलाइज किया जा रहा है एक ही चीज को करने के लिए, बिकॉज इट इज दैट चैलेंज। ये आप मेरे जैसा कोई विजिबल लोग होता जिसको कैमरा में दिखाई दे रहा है, इनके 3D को स्कैन करने के लिए इतना मेहनत क्यों करना पड़ता? सिर्फ उसको प्रेजेंट करने के लिए 10, 15, 20, 25, 100 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हो रहा है। एक बार सोच के Sir, got it.
सो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, आई विल टॉक अबाउट, that allows for the specimen of interest to be viewed at cryogenic temperature. तो बहुत सालों का इंप्रूवमेंट के बाद क्रायोइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकम वैल्यूएबल टूल फॉर व्यूइंग एंड स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. इसके पहले इससे नहीं होता था, लेकिन ये यूज होता था मेटल सरफेस, नैनो पार्टिकल, ये सबको देखने के लिए या स्ट्रक्चर करने के लिए. Transmission electron microscopy refers to a technique where the image or specimen is formed by directing a high energy electron beam at a thin sample. High energy electron beam आके thin samples में हिट करता और जो scattered electron है उसी को हम कोशिश करता इमेज बनाने का. While cryo-electron microscopy encompasses, ये किस किस में यूज होता है? इमेजिंग इंटैक्ट टिश्यू सेक्शन, हमारा जो टिश्यू है, इमेजिंग प्लांट फ्रोजन सेल्स, इमेज इंटैक्ट वायरसेस, इमेजिंग मैक्रोमोलिकुलर assemblies like ribosome, and these methods are based on the principle of imaging radiation sensitive specimen in a transmission electron microscope. जब आपको बहुत बड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बीम आता है, वो आके इमेजिंग तो कर जाता है, लेकिन साथ साथ वो क्या करता है, वहां रेडिएशन डैमेज करता है. और जो रेडिएशन डैमेज हो रहा है ये बायोलॉजिकल सैंपल्स को बहुत हीट करता है. तो ये प्रॉब्लम था. कैसे शुरू हुआ? इट स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय जे थॉमसन इन 1897. उसके काफी देर बाद इलेक्ट्रॉन को यूज करने के लिए आर्न्स रुस्का ने 1931 में पहला डिस्कवरी किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जहां लाइट माइक्रोस्कोप से जो हो रहा था उससे काफी इंप्रूवमेंट ऑफ विजन मिला लोगों को. इलेक्ट्रॉन्स में इधर भी स्कैटर्ड और ट्रांसमिटेड, जैसे मैंने बोला हीट करने के बाद जैसे लाइट एनर्जी आएगा तो वो स्कैटर्ड करेगा, ये करेगा, ये भी scattered or transmitted when interacting with the biological material, thereby yielding either surface or internal structural information. ये जो surface and structural information है, ये internal structure, ये हमें जरूरी है biological sample के लिए. Critical technological advancement was necessary before electron microscopy could be used for structural analysis. क्या चाहिए था? The necessity of high vacuum and the possibility of radiation damage implied the biological macromolecules had to be protected. तो एक है कि बहुत हाई वैक्यूम क्रिएट करनी है और रेडिएशन डैमेज से बचानी है. उसका मतलब कि उनको कुछ एक प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग से ले जाना है. बट जब भी आप फ्रीजिंग करोगे तो क्या होता है, वो जो पानी है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो वाटर पार्ट है, वो आइस फॉर्म करता है और नेचुरल नहीं होता वो. तो कैसे करनी है, इसको बोलते हैं विट्रिफिकेशन. एक प्रोसेस ऑफ विट्रिफिकेशन, उसमें इतना जल्दी कूलिंग किया जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे बोला लिक्विड इथेन. लिक्विड इथेन के प्रेजेंस में इतने जल्दी इनको ये किया जाते हैं, फ्रीज किया जाते हैं, जैसे आइस फॉर्म होने का टाइम ही नहीं मिलता. इंस्टेड ऑफ आइस यू गेट एमोर्फस सॉलिड, एंड दिस प्रोसेस को दे कॉल एज विट्रिफिकेशन. Here the vitrification is the key because biological sample are frozen, but वो फ्रोजन स्टेट पे ले जाने के लिए आइस फॉर्मेशन नहीं हुआ. The sample is then screened for particle concentration, distribution and orientation. तो आपका प्रोटीन है, तो प्रोटीन कैसे कितने कॉन्सेंट्रेशन है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक जगह पे एग्रीगेट तो नहीं किया, ओरिएंट कैसे है, ये सब चेक किया जाता है. फिर वो सारे को माइक्रोस्कोप के हेल्प में सीरीज ऑफ 2D पिक्चर लिया जाते हैं. ओके, एंड देन यू हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑल कलेक्टेड. वो सारे डिफरेंट जो ओरिएंटेशन है उसको डिफरेंट कैटेगरी में आइसोलेट किया जाता है. फिर वो सारे 2D को एक जगह पे ले आके 3D पिक्चर करते हैं. सो
First thing is the vitrification. After vitrification, the sample is then screened for particle concentration, distribution, and orientation. Next, a series of images acquired in two-dimensional classes are computationally extracted. In the final step, the data is processed by reconstruction software, yielding accurate, detailed 3D model of integrated biological structure, the subcellular and molecular scales. The model can reveal interactions that were impossible to visualize previously, which are key to the scientific results. एंड ये सब हम आप देख सकते हो, तीन लोग हैं, जैकोइस डुबोचेट, जोआकिम फ्रैंक एंड रिचर्ड हेंडरसन. इनको 2017 में इनके इतने अच्छे कंट्रीब्यूशन को मान्यता देते हुए नोबेल प्राइज पे आधारित किया गया, अवार्डेड किया गया है. क्या रोल है उनका? इन 1975 जोआकिम फ्रैंक began work on the algorithm that would analyze the fuzzy 2D images and reconstruct them into सर्व 3D structure. और 2D images से 3D ये जोआकिम फ्रैंक ने किए. In the early 1980s, Jacques Dubochet succeeded in vitrifying water. जो vitrification के बारे में हम बोले हैं, वो Jacques Dubochet ने किया, which allowed the biomolecules to retain their shape in a vacuum without being crystallized. In 1990, Richard Henderson was the first to use an electron microscope to generate a 3D image of a protein at atomic resolution. So, क्या advantage है? They able to look at large molecular assemblies. The resolution now is 30 angstrom to below 4 angstrom. Even now, if you look at the current literature of cryo-electron microscopy, you will see that structures are solved by cryo-electron microscopy at the level of 2 angstrom and better. क्रायो माइक्रोस्कोपी प्रिजर्व्स एक्वस एनवायरनमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी को समझने के लिए. स्टेनिंग की जरूरत नहीं होते. एक्सपेरिमेंटली मोर ट्रैक्टेबल, मोर बायोलॉजिकल लाइक एनवायरनमेंट. इट कैन रिजॉल्व इमेजेस by direct measurement of phases. And if you look at the protein, in case of crystallography, I talk about there is a problem which is problem of phase determination. वो भी यहाँ नहीं होते. And suitable for the study of membrane protein. Membrane protein एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसका स्टडी बहुत इम्पॉसिबल है. NMR और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ज्यादातर फेलियर होता है, बट क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से मेम्ब्रेन प्रोटीन का स्टडी किया जाता है. सो वी आर हेयर टू डू द स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप. हमें डीएनए के सीक्वेंस, प्रोटीन के सीक्वेंस मिला है और हमें फंक्शन पे जाना है, बट इन बिटवीन इज 3D structure. So here we justify the need of modeling. Remember our course is modeling. Modeling में दो चीज है, एक डिजाइन, एक डेवलपमेंट. So यहाँ हमें रिक्वायरमेंट का पता चला कि ये जो टेक्निक्स है, जो 3D बनाते हैं, वो ज्यादा अच्छे से बना नहीं पा रहा है, वो बहुत स्लोली बना रहा है. सो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर एंड मोर 3D स्ट्रक्चर. और इसीलिए हम स्क्रैच से, सीक्वेंस से 3D स्ट्रक्चर को बनाएंगे, जो कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और द प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग ए 3D स्ट्रक्चर. दैट्स आवर गोल. वी विल shift next class to understand and further development. If you have any question, please ask me. Otherwise, we'll finish the class. Any question? No, sir, I have no question. Okay. Thank you. Please tell me when would be the time tomorrow. I am good with 3 to 6, any 2 hours, 3 to 5, 4 to 6. Okay. Yes, sir. 3 to 5? Yes, sir. Okay. Or like I'll. Yeah, please send a mail to everyone, including me, that there will be Okay, class from 3 to 5. Okay. Okay, sir. Thank you very much. Thank you, sir.